Question is, in a direct current arc welding process, the power source has an open circuit voltage of 100 volt and short circuit current of 1000 ampere. Assume a linear relationship between voltage and current. The arc voltage varies with the arc length L as V equal to 10 plus 5L, where V is in volts and L is in millimeter. The maximum available arc power during the process, fill in the blanks, kVA. Option A 80, option B 120, option C 180 and option D 25. तो देखिए हमारे पास वेल्डिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि डायरेक्ट करंट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें जो पावर सोर्स है हमारा उसका ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे ओसीवी दिया हुआ है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट है और शॉर्ट सर्किट करंट भी दिया हुआ है। एससीसी से डिनोट करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट को। दिस इज गिवन एज 1000 एम्पियर। लीनियर रिलेशनशिप है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन voltage and current, between voltage and current। यहां पे दिया हुआ है कि आर्क वोल्टेज हमारा आर्क लेंथ से कैसे वेरी करता है। V A is equal to arc length varies with arc voltage varies with arc length as 10 plus 5L। को A लिख देता हूं तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा। आर्क वोल्टेज वोल्ट में है और आर्क लेंथ मिलीमीटर में है। क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम अवेलेबल आर्क पावर क्या होगी इस प्रोसेस में। पी मैक्स पूछा गया, तो पी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी हमारी वी ट्रांसफॉर्मर इंटू आई ट्रांसफॉर्मर, वी टी इंटू आई टी। यही हमको फाइनली कैलकुलेट करना है किलो वोल्ट एम्पियर में। तो चलिए सबसे पहले वीटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वीटी फाइंड आउट करने के लिए ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज इक्वल टू ओसीवी ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओसीवी डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट एससीसी इंटू आईटी, ट्रांसफार्मर करंट आईटी। ओसीवी दिया हुआ है 100 माइनस 100 divided by short circuit current is given as 1000 and this is IT. So finally we will get the value of VT as 100 minus these two will get cancelled out, so IT divided by 10. This will be equation 1. So for stable arc condition, जब आर्क हमारी स्टेबल हो उस कंडीशन में अगर हम देखें, फॉर स्टेबल आर्क कंडीशन, transformer voltage is equal to arc voltage. Transformer voltage is equal to arc voltage. So here we can write it as we will take arc voltage as 10 plus 5 LA is equal to transformer voltage. Here we can equate these two, so it will be 100 minus IT by 10. So we will solve this equation for IT. So we will get IT by 10 is equal to 100 minus 10, that will become 90, and 5 LA will go to right hand side.
it is minus 5 LA. So finally we will get the value for IT, or equation for IT in terms of LA arc length. It will be 900 minus 50 LA. 900 minus this will become 50 LA. So we can take it as equation number 2. Can take as equation number 2. So we know the formula of Pmax. Pmax is Vt into IT. तो हम लोग Pmax यहाँ से निकालेंगे. तो देखिए Pmax के लिए मैं Vt की वैल्यू ले लेता हूँ. Vt हमारा यहाँ पे हम लोग देखते हैं Vt इज इक्वल टू Va है, तो हम लोग आर्क लेंथ के टर्म्स में लेंगे इसको. तो Vt के लिए अगर आर्क लेंथ के टर्म्स में लेंगे हम, तो इक्वल टू Va हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 LA, और Vt हो गया. IT लेना है, तो IT के लिए हम लोग ये ले लेंगे 900 माइनस 50 LA इंटू 900 माइनस 50 LA. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9000 प्लस 4500 LA. Then we will multiply 5 with, then we will multiply 10 with 50. It will become 500 LA and minus 5 into 50, 250 LA. So this will be the equation Pmax. But here in this question, they have asked the maximum available arc power during this process. So for finding out maximum power, we have to differentiate it with respect to LA. So dp max by क्योंकि आर्क लेंथ हमें पता चलेगा, तो इसी आर्क लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम पावर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. DLA is equal to, this will become 0, this will become 4500, this will become minus 500, and this will become, this is LA square. 5 into 50, 250 LA, and LA will get multiplied, then it will become LA square. So minus, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 500 LA. इसे हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे. dp by dmax is divided by dla is, we will be equating it by 0. So here by solving this, we will get the value of LA as 4500 minus 500. This will become 4000, and we will divide it by 500. We will get the value of arc length as 8 millimeter. So जब हमारे आर्क लेंथ की वैल्यू 8 मिलीमीटर होगी, तब पावर मैक्सिमम होगा. तो चलिए इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, और देखते हैं इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं. P max की वैल्यू मिल जाएगी हमको 8 5 जा 40, this will become 50 into, यहाँ पे 400 हो जाएगा. 50 into 8 400, 900 minus 400 is equal to 500. So it will become 25,000 volt ampere. We have to take it in kVA, so it will become 25 kVA. So the value of Pmax is 25 kVA. तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है. एक कंडीशन होती है हमारे
लीनियर पावर सोर्स के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 25 केवीए। लीनियर पावर सोर्स के लिए मैक्सिमम पावर के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है VT इज इक्वल टू VO बाई 2, ओपन सर्किट वोल्टेज बाई 2 फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए जो कंडीशन होती है VT इज इक्वल टू VO बाई 2 एंड IT इज इक्वल टू IO बाई 2, सॉरी IS बाई 2, शॉर्ट सर्किट करंट बाई 2। तो यहां से देखिए अगर VO हम देखते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज तो 100 बाई 2 ये हो जाएगा 50, और शॉर्ट सर्किट करंट देखते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 500। तो यहां से भी हम लोग P मैक्स निकाल सकते हैं। P मैक्स हो जाएगा हमारा VT इंटू IT, और 50 इंटू 500 हमारा यहाँ पे ये भी 25,000 वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, जैसे कि हम लोग 25 केवीए लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि लीनियर पावर सोर्स है और मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से भी हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड है। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।